my dear sweet friends. Once again, I am with you through my video. Wish you at first a very lollipop morning, a very handsome morning, a very hilarious morning, a very happy morning. Hope all of you are hale and hearty. All of you are enjoying good health. All of you are studying properly, reading properly, playing properly, and at the same time making some mischief, good mischiefs you can say. You must be making merry in your life. And your life must be fresh as the morning, as fresh as the rose, as fresh as your face. In the previous videos, you have seen or you have met some of the friends, some of the family members you can say, of the family, of the word family you can say, that is parts of speech. दोस्तों, आशा है आप खुश होगे, उल्लसित होगे, उमंग से भरे हुए होगे, जोश से भरे हुए होगे, तरोताज़ा होगे आप. और I hope all of you must be waiting for me and for my video also. I miss you. I have told you all the time. I miss you people a lot. मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद आते हैं आप. It becomes impossible for me to be without you because I love you a lot. You are so lovable. You are the small kids, little chumps, the future of the country. You are the small butterflies, beautiful butterflies you are. You are the sweet flowers, full of fragrance, full of sweet smell. And I hope you too must be waiting for me, must be waiting for my video. So, we are friends. We are made for each other. If I can't live without you, I hope you too can't live without me. So, while going through parts of speech, you have met some of its family members. वर्ड फैमिली, शब्द परिवार के कुछ शब्दों से आपकी मुलाकात हुई थी, आपकी दोस्ती हुई थी. और वे दोस्त आपको याद होंगे, थे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव. ये तीन दोस्तों से आप मिल चुके हैं. यू हैव मेट ऑल दीज थ्री वर्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स. शब्द दोस्त. नाउन के बारे में आपने जान लिया था कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, एनिमल, स्टेट ऑफ माइंड. दिस मीन्स ऑलमोस्ट all the things which you see, you smell, you touch in the universe, in this whole universe, पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो कुछ भी आप देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, जो कुछ भी है वो सब नाउन है. ये आप जान चुके. Pronoun are the words which come in place of noun.
वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले यानी कि इन प्लेस ऑफ नाउन, वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन आर प्रोनाउंस। वैसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, साइड कर देते हैं, हटा देते हैं और उनकी जगह खुद अपना पोजीशन लेते हैं और नाउन का काम करते हैं, नाउन के लिए स्टैंड करते हैं। वर्ड्स विच स्टैंड फॉर नाउन आर प्रोनाउंस। यू नो इट वेरी वेल। चुन्नू मुन्नू, आपको ये पता है। फिर आपने देखा, यू हैव सीन एडजेक्टिव, जिसको कि आप विशेषण कहते हैं हिंदी में। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताता है वो विशेषण हुआ। वैसे शब्द जो विशेषता बताने का काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, इस फैमिली में जितने भी शब्द मेंबर हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली वर्क। सारे लोग काम करते हैं क्योंकि काम तो करना है। We all of us have to work. आप अपने घर में देखिए ना, मम्मा वर्क्स, पप्पा वर्क्स, ग्रैंड पेरेंट्स वर्क, योर ट्यूशन टीचर comes and he or she works. If a laborer comes to your home, he works. See around yourself, अपने आसपास देखिए। A shopkeeper works, a rickshaw puller works, a vendor works, a plumber works, a goldsmith works. तो इसी तरीके से शब्द परिवार में सारे का अपना अपना काम बटा हुआ है। तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन और नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। वर्ड्स विच क्वालिफाई यानी कि विच tell about the quality of noun or pronoun or adjectives. In the previous video, I have discussed it in detail, threadbarely rather. Now, the another member, the fourth member, there are 8 members in this family. इस परिवार में 8 सदस्य हैं। 3 से हम मिल चुके हैं and we have to meet the rest 5 ones. And the fourth one is verb. V-E-R-B. Verb means kriya. In Hindi, kriya. Dear sweet friends, work is worship. कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। Work is worship. And this whole universe always works. And here we all have to work. Every day we work. Every day we work. हम हमेशा, हर दिन, हर पल कुछ न कुछ करते हैं, कोई न कोई काम करते हैं, कोई न कोई एक्शन हम करते हैं। We do some action. We do some work. And the words which tell about our actions, our work, are action words, are doing words, are verbs. वैसे शब्द जो
या जिनसे किसी भी काम के होने का बोध होता है, वैसे शब्द जो किसी भी काम के होने का बोध कराते हैं, किसी भी काम के होने के बारे में बताते हैं, क्रिया कहलाते हैं। एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स आर आल्सो नोन एज एक्शन वर्ड्स। Verbs are also known as doing words. To do means करना. To do, to do. To do means करना. तो वैसे शब्द words which show that some work is being done. वैसे शब्द जो यह बताते हैं कि कोई काम होता है या हो रहा है, वैसे वे क्रिया कहलाते हैं। उनको हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं, उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। यानी ए वर्ड दैट टेल्स अस, ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन, एनिमल और थिंग does is called a verb. A word that tells us what a person, animal or thing does is a doing word, is a action word, is a verb. काम तो केवल हम ही नहीं करते हैं, जानवर भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। जो भी काम करता है, जो कुछ भी किया जाता है किसी के द्वारा, वह वर्ब कहलाता है। खेलना, पढ़ना, लड़ना, झगड़ना, पीना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? इन सभी शब्दों से किसी काम के होने का बोध होता है। राम पढ़ता है, पढ़ने का काम। राम रीड्स, राम रीड्स। सोना खेलती है, सोना प्लेज। मोना रोती है, मोना वीप्स। तो राम खेलता है या राम पढ़ता है तो राम रीड्स। काम कौन करता है यहां पर भाई? हु इज वर्किंग हियर? राम। तो राम हो गया करने वाला, यानी सब्जेक्ट राम। और राम क्या करता है? ही रीड्स, यानी वो पढ़ता है। यानी काम यहां कौन सा हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। सोनू जंप्स, सोनू जंप्स, सोनू कूदता है। काम हो रहा है ना, कूदने का काम हो रहा है। ये जंप वर्ड दिखा रहा है। जंप के द्वारा हमको मालूम होता है कि जंप का काम हो रहा है। तो जंप क्या हो गया? वर्ब हो गया। हिंदी में कूदना क्या हो गई? क्रिया हो गई। सोना ईट्स, सोना ईट्स, काम हो रहा है खाने का। तो ईट क्या हो गया? वर्ब। खाना क्या हो गया? क्रिया। मोहन इज गोइंग टू मार्केट, मोहन इज गोइंग टू मार्केट। मोहन बाजार जा रहा है। कौन जा रहा है? हु इज गोइंग? मोहन जा रहा है। मोहन इज गोइंग। कहां जा रहा है? तो बाजार जा रहा है। मोहन क्या कर रहा है? वह जा रहा है, जाने का काम कर रहा है। मोहन इज डूइंग द वर्क ऑफ जाना, वो जाने का काम कर रहा है। तो यहां जो गोइंग है, इज गोइंग, ये वर्ब है। ठीक है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। गो, कम, sit, jump, rise, eat, all these things, laugh, smile, weep, all these words show
some work, some action, some doing, you can say. Therefore, all these words are action words. Mama is sitting, बैठने का काम कर रही हैं. Papa is washing the plates. Mama is sitting, Papa is washing the plates. What is? Mama is sitting, मम्मा बैठी हुई है, बैठने का काम कर रही है मम्मा. पापा क्या कर रहे हैं? प्लेट धो रहे हैं. मम्मा इज ऑर्डरिंग, मम्मा ऑर्डर दे रही है. पापा इज स्वीपिंग द फ्लोर, मम्मा आदेश दे रही है, आदेश देने का काम कर रही हैं. पापा इज स्वीपिंग द फ्लोर, पापा क्या कर रहे हैं? झाड़ू दे रहे हैं, झाड़ू देने का काम. तो ऑल दीज वर्ड्स विच टेल अबाउट सम एक्शन, वैसे कोई भी शब्द जिनसे किसी काम के होने का बोध होता है, वे शब्द वर्ब कहलाते हैं, डूइंग वर्ड्स कहलाते हैं, एक्शन वर्ड कहलाते हैं. नाउ कम टू एडवर्ब. एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब. अब एडवर्ब क्या करते हैं भाई? तो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स, adverbs are the words which qualify. Adverbs are the words which qualify verb. An adjective and an adverb also. गजब. एक बाम तीन काम झंडू बाम. जो एडवर्ब है, एडवर्ब झंडू बाम की तरह है भैया. एक बाम तीन काम, झंडू बाम. तो एक एडवर्ब तीन काम करता है. पहला काम क्या करता है भैया? एडवर्ब. इट क्वालिफाइज ए वर्ब. वर्ब की विशेषता बताता है. वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं. यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं. वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं. अब कैसे क्रिया की विशेषता बताते हैं देखिए. राम रीड्स, राम पढ़ता है. बीसू रीड्स, तो बीसू रीड्स, यहां बीसू क्या है? नाउन है. काम करता है बीसू. काम कौन कर रहा है यहां? हु वर्क्स हियर? बीसू. अब बीसू रीड्स, बीसू कैसे पढ़ता है? सॉरी, बीसू क्या करता है? तो वो रीड करता है, यानी कि पढ़ता है. बीसू रीड्स. तो बीसू नाउन, रीड्स हो गया यहां पर वर्ब. That's all. और इसमें कुछ नहीं है. दो ही वर्ड थे यहां पर. एक बीसू था आपके पास, दूसरा रीड्स था आपके पास. बीसू नाउन हो गया, रीड्स वर्ब हो गया. कहानी खत्म हो गई. बोलिए सियापति रामचंद्र की जय. पैसा हजम, तमाशा खत्म. दो ही वर्ड तो थे यहां पर, बीसू और रीड्स. सोना सिंग्स, टू वर्ड्स. सोना सिंग्स, सोना गाती है. तो सोना नाउन, क्योंकि नाम है. और सिंग मतलब गाना, गाने का काम. तो सोना सिंग्स, तो सिंग्स वर्ब हो गया. मामला खत्म. दैट्स ऑल. अब हम कहें अगर इफ आई से लाइक दिस कि बीसू रीड्स लाउडली. बीसू रीड्स लाउडली, LOUDLY. अब यहां क्या हो गया?
कौन पढ़ता है भैया? तो बिशु। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, वो नाउन होता है, नाउन हो गया बिशु। करता क्या है बिशु? पढ़ता है, रीड्स, तो वर्ब हो गया। कैसे पढ़ता है? हाउ डज ही रीड? हाउ डज बिशु रीड? बिशु कैसे पढ़ता है भैया? तो सवाल का जवाब था बिशु कैसे पढ़ता है, पट से जवाब आ गया, लाउडली पढ़ता है, लाउडली। जोर से पढ़ता है, जोर से। यानी पढ़ने का जो काम हो रहा है वो जोर से हो रहा है, जोर जोर से। तो यहां लाउडली किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ने की विशेषता, पढ़ने के काम की विशेषता, कि पढ़ने का जो काम हो रहा है बंधु वो जोर जोर से हो रहा है, धीरे धीरे नहीं। और हम कहें बिशु रीड्स स्लोली, बिशु रीड्स स्लोली, स्लोली, धीरे धीरे। बिशु धीरे धीरे पढ़ता है। यहां पढ़ने का काम कैसे हो रहा है भैया? धीरे धीरे। सोना वॉक्स फास्ट, सोना वॉक्स फास्ट, सोना चलती है, सोना वॉक्स। सोना नाउन, वॉक्स वर्ब। कैसे चलती है? सोना वॉक्स फास्ट, तेजी से चलती है। ये जो तेजी से है ये चलने की विशेषता बताता है, सोना की नहीं बताता है, चलने की। काम हो रहा है ना चलने का, सोना वॉक्स। यहां काम कौन सा हो रहा है? यस यस यस, यू आर राइट, चलने का काम हो रहा है मोना, ठीक बोल रही हो तुम। यहां चलने का काम हो रहा है। और चलने का काम कैसे हो रहा है? तेजी से हो रहा है। थैंक्स, थैंक्स मोनू, यू आर क्वाइट राइट, आप सही हैं। देखिए बच्चे आप लोग कितने तेज, कितने से समझ रहे हैं। यहां काम कौन सा हो रहा है? चलने का काम। और चलने का काम कैसे हो रहा है? तेजी से हो रहा है। तो यहां क्या करता है? ये जो फास्ट शब्द है इंग्लिश में, इट इज क्वालिफाइंग द वर्ब वॉक। नेहा वॉक्स स्लोली, धीरे धीरे चलती है। जनरली एडवर्ब्स एंड इन ly, जनरली। अब एडवर्ब आपने देख लिया कैसे एडवर्ब, यू हैव सीन हाउ एडवर्ब टेल्स अबाउट द वर्ब, टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्ब, हाउ इट क्वालिफाइज ए वर्ब, कैसे ये वर्ब की विशेषता बताता है, ये आपने देखा। और मैंने आपको कहा है, आई हैव टोल्ड यू कि एन एडवर्ब डज 3 फंक्शंस। एडवर्ब के 3 काम, जैसे झंडू बाम के 3 काम, एक बाम 3 काम झंडू बाम, उसी तरीके से एडवर्ब के 3 काम आपको बताने होंगे मुझे। तो पहला काम तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा काम क्या करता है? एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देता है। ये कैसे बताता है देख लीजिए जरा। रमेश हैज ए काउ, रमेश हैज ए काउ, रमेश को गाय है। रमेश हैज ए काउ। अब रमेश हैज ए काउ, तो रमेश नाउन हो गया यहां पर फ्रेंड्स, और काउ भी नाउन हो गया, दोनों नाउन है। रमेश हैज ए काउ। इसमें आप खोजिए एडजेक्टिव को, रमेश हैज ए काउ खोजिए तो एडजेक्टिव मिलता है आपको कहीं? खोजिए, नहीं मिला, मिलेगा ही नहीं। देयर इज नो एडजेक्टिव हियर। जब है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? हाउ? नहीं मिलेगा, क्योंकि रमेश हैज ए काउ में रमेश भी नाउन है और काउ भी नाउन है। ए है आर्टिकल और हैज यहां पर वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, तो इसमें एडजेक्टिव है ही नहीं। जब एडजेक्टिव नहीं है तो आगे बढ़िए, लेट अस प्रोसीड, चलते हैं एडजेक्टिव खोजते हैं कहीं पर।
रमेश हैज ए ब्लैक काउ। रमेश हैज ए ब्लैक काउ। रमेश के पास एक काली गाय है। कैसी गाय है भाई? बोलिए बोलिए बोलिए, कैसी गाय है? कि चुप मत रहिए। डोंट कीप मम। यस, वेरी गुड चिकू, यू आर क्वाइट राइट। काली गाय, यानी वो गाय की विशेषता है कि वह गाय काली है। रमेश की गाय जो है, जो गाय रमेश के पास है, वह काली है। रमेश हैज ए ब्लैक काउ। काउ हो गया नाउन, और नाउन काउ के पहले क्या आ गया? ब्लैक, जो विशेषता बता रहा है किसकी? काउ की। कैसी गाय? ब्लैक गाय। कैसी काउ? ब्लैक काउ। तो ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव। काली गाय। रमेश हैज ए रेड शर्ट। कैसी कमीज भैया? तो रेड कमीज, लाल कमीज। तो यहां पर रमेश हैज ए ब्लैक काउ में आपको नाउन भी मिला और एडजेक्टिव भी मिला, दोनों मिला। रमेश भी नाउन, काउ भी नाउन। काउ के पहले आ गया कौन? ब्लैक, हो गया एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब नहीं मिला है। यू हैव नॉट मेट विथ एडवर्ब हियर। और मैंने आपको कहा है कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता भी बता देता है। कैसे बताता है? हाउ? अब देखिए, हम आपको ले चलते बताते हैं। रमेश हैज ए डीप ब्लैक काउ। रमेश हैज ए डीप, DEEP, रमेश हैज ए डीप ब्लैक काउ। अब काउ क्या हो गया? नाउन, आप जान रहे हैं, यू नो दिस। अब काउ के पहले आ गया क्या? ब्लैक, काली गाय। आपको पता है, अभी आपने बताया था कि वो एडजेक्टिव है, तो ठीक है, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव। कैसी काली? कैसी काली? डीप ब्लैक, नॉट लाइट ब्लैक। लाइट ब्लैक नहीं, डीप ब्लैक, गहरी काली, गहरी, कड़ियों में कड़िया, खूब कड़िया, खूब कड़िया एकदम। रमेश को खूब कड़िया गाय है। रमेश हैज ए डीप ब्लैक काउ। तो यहां डीप क्या कर रहा है दोस्तों, फ्रेंड्स? वो ब्लैक की विशेषता बता रहा है। ब्लैक, कैसा ब्लैक? तो डीप ब्लैक, डीप ब्लैक। तो यहां क्या हो गया? काउ नाउन, ब्लैक एडजेक्टिव और डीप एडवर्ब, क्योंकि वो ब्लैक की विशेषता बताता है, ब्लैक के बारे में बताता है, और ब्लैक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बारे में बताने वाले को मैंने कहा था एडवर्ब कहलाता है। वो एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव की विशेषता ही बताता है। बता दी ना विशेषता, देखा ना आपने, झूठ थोड़े ही हम बोल रहे हैं। हाथ कंगन तो आरसी क्या? आपके हाथ में कंगन वाली, आपने कंगन पहन रखा है हाथ में, बाला, माला, ताला, बाला, कंगन पहना है, आपके हाथ में है, तो फिर देख रहे कि सामने में है, तो फिर आईना देखने की क्या आवश्यकता है? हमको यह बताइए। आपके हाथ में कलम है, तो फिर आईने के सामने जाकर खड़ा होने की क्या आवश्यकता? आप देख रहे हैं कलम है, तो हाथ कंगन तो आरसी क्या? हाथ में कंगन है तो फिर आरसी कहां? फिर दर्पण की क्या आवश्यकता है यह जानने के लिए? देख तो लिया आपने, ब्लैक एडजेक्टिव है, ब्लैक के बारे में कहता है डीप ब्लैक, तो ब्लैक की विशेषता बता दिया डीप ने, इसलिए क्या हो गया? ब्लैक हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं एडवर्ब, तो डीप हो गया एडवर्ब। सोना हैज ए रेड पेन। सोना हैज ए रेड पेन, तो पेन नाउन, और रेड एडजेक्टिव। कैसी कलम भैया? तो लाल कलम, लाल कलम। तो ये लाल, रेड, लाल विशेषण, रेड एडजेक्टिव।
और सोना हैज ए लाइट रेड पेन, लाइट रेड पेन, लाइट रेड, नॉट डीप रेड, लाइट रेड। तो रेड एडजेक्टिव, कैसा कैसा रेड, तो लाइट रेड, लाइट एडवर्ब। दो काम। अब तीसरा काम, थर्ड वर्क ऑफ एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब का काम नाम ही है, झंडू बाम है एडवर्ब, एक बाम तीन काम झंडू बाम। तीसरा काम देखिए, एडवर्ब अपनी विशेषता ही बताता है, खुद अपने से अपनी विशेषता, अपने को ही क्वालिफाई कर लेता है। कैसे, देखिए, रमेश हैज ए काउ, इसमें दोनों नाउन है, रमेश भी नाउन है और काउ भी नाउन है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रमेश हैज ए ब्लैक काउ, यहां पर काउ हो गया नाउन और ब्लैक हो गया आपका एडजेक्टिव। रमेश हैज ए ब्लैक काउ, ठीक है भाई, ब्लैक काउ है उसके पास। और रमेश हैज ए डीप ब्लैक काउ, तो काउ नाउन, ब्लैक एडजेक्टिव और डीप एडवर्ब। और रमेश हैज ए वेरी डीप ब्लैक काउ, रमेश हैज अ वेरी डीप ब्लैक काउ, वेरी डीप, तो काउ नाउन, ब्लैक एडजेक्टिव, डीप एडवर्ब। और कैसा डीप, वेरी डीप, वेरी डीप के पहले लग गया वेरी, बहुत गहरी काली का है। ये जो डीप के पहले वेरी लग गया बाबू, माय स्वीट फ्रेंड्स, मेरे मीठे दोस्त, ये जो डीप के पहले वेरी आ गया ना, अब ये क्या कर रहा है, वेरी तो आप जान ही रहे एडवर्ब है, और ये वेरी एडवर्ब की ही विशेषता बता रहा है, एडवर्ब के बारे में बता रहा है, यानी ये फिर एडवर्ब हो गया, वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। डीप भी एडवर्ब था ना, डीप भी एडवर्ब था और वेरी भी एडवर्ब है, हो गया ना। एडवर्ब की विशेषता यहां बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बोलिए, यस बता रहा है ना। या वेरी डीप, सोना हैज अ वेरी लाइट डीप रेड पेन, पेन नाउन, रेड एडजेक्टिव विशेषण, लाइट एडवर्ब, लाइट रेड, रेड की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो गया। और उसके पहले, लाइट के पहले क्या आ गया, वेरी, वेरी लाइट। ये वेरी क्या कर रहा है, लाइट की खूबी के बारे में बता रहा है, लाइट की खूबी बता रहा है। कैसा लाइट भैया, तो वेरी लाइट, तो लाइट तो एडवर्ब था ही, और उसके पहले वेरी आ गया, वेरी भी एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब ने एडवर्ब की विशेषता बता दी। तो इस तरीके से आई हैव प्रूव्ड इट, मैंने ये दिखा दिया आपको करके कि एडवर्ब हैज 3 फंक्शंस टू डू। एडवर्ब के 3 काम, ये 4 काम हो गए ना, एडवर्ब के हो गए 2 और 1, 2 और 2, 2 1 3 काम। एडवर्ब के 3 काम हैं, 4 नहीं, 3 काम। वर्ब की विशेषता बताना, टू टेल about the quality of a verb. Secondly, to qualify an adjective, विशेषण की विशेषता बताना। And third, to qualify itself, यानी to qualify an adverb. Adverb qualifies himself. Adverb qualifies itself. Adverb qualifies an adverb. Adverb adverb की भी विशेषता बताता है। So that's all for today. I hope
you will like this video also. You will send your comments also. Your comments are always solicited. Your comments are always welcome, because through your comments we get strength. We get some suggestions also to improve ourselves, to improve the quality of video, to improve the quality of making friendship, to improve the quality of teaching. So please do make some comments and be happy, stay at home, stay safe, eat much, drink much, read much, sleep much. At the same time, do less mischief. Thanks a lot. God bless you all.